every day you will be not saying कि आज मुझे menstruation आया है. So what you will be saying? Those are called periods. In the lay language we will be calling a monthly period. Okay, periods आए हैं मुझे. Okay, that's period. So first of all, before starting menstruation hygiene, menstrual hygiene, we will be discussing what is menstruation. So what is menstruation? It is a commonly known as a period in a natural process, that is a monthly process, in which a female body sheds the lining of the uterus. It is a sign that a girl's body is going to be matured. There are some lot of changes which occurs in the females, the girls, and then you become a female. Okay, first you are a girl, na? After marriage you become female. So you are the starting period. Okay, so now you should know that this will be a monthly headache. Okay, this will be a monthly headache. Every month you will be menstruating, and then every month you will be having periods. So to prevent the infection, because to prevent the infection to your reproductive cycle or the reproductive organ, your vagina, your urine part, that should not get infected. Your body should be very fit and fine. So to prevent that, what is happening in the menstruation period, you all should know what is menstrual hygiene. How you will be keeping your menstrual hygiene. Okay. So what is the menstruation? It is a natural process in girls and women. It usually starts between the ages of 9 to 15 years of age. किसी को 9 years में आएगा, किसी को 10 में आएगा, किसी को 11. तो ऐसे भी बोला है कि अरे मला क्या लड़ा हुआ, अरे ठीक है wrong है क्या? Something I'm going into abnormal phase तो. Okay, this is the ratio of the age. 9 to 15 is abnormal. किसी को late भी आ सकता है. Need not worry कि I am somewhat abnormal, something is abnormal in my body. You should not go there. So the body is saying it is 9 to 15 years. इस age में किसी को भी आ सकता है. तो किसी को 9 में आए, किसी को 10 में आए, तो need not worry. Okay, what is the body's process? The age is 9 to 15 years. It happens once a month and lasts for 3 to 7 days. किसी को 3 days में आएगा. Some girls will be menstruating, will be having periods for 5 days, and some for 7 days also. So need not worry. Okay. जो हमें पीरियड्स आने पर है ना, पीरियड्स आएंगे, किसी को आए रहेंगे, किसी को नहीं आए हैं, तो ये कहाँ से, from where the bleeding will start? The bleeding जो रेड कलर का blood, that's our not the fresh blood, it's the wastage, that is the shedding from the uterus. ये कहाँ से आएगा? So this is the female reproductive organ. So this is the center is the uterus. तो और बाजू से जो fallopian tube, ovaries, this will be the later phase. Okay, first of all आप तो आपको क्या रखना है ध्यान से this जहाँ पे आपको दिख रहा है वजाइना, जहाँ दिख रहा है आपको anybody you all see the girls वजाइना जहाँ पे लिखा है. ओके, जो अंदर काम हो रहा है that is happening in the uterus only. तो uterus जो आपको एरो दिखा है ना, that is the uterus. The shedding जो हमेशा जैसा fertile land, जो एक अभी हमको खेती उगानी है एक लैंड में, फॉर एग्जांपल वो एकदम बंजर हो चुकी है, तो उसमें हम लोग ट्रैक्टर चलाते हैं, हम बुलक कार्ट चलाते हैं, make that land fertile, ना, make that land fertile, and then you will be having a good crops. So it is same like that. When once you land up into puberty, this is going to happen in your body. Okay, तो uterus में से जो lining of the जो है uterus का वो shed होगा in the form of blood, and वो कहाँ से आएगा? Not from your urine जहाँ से आता है वहाँ से, from where it will be coming? From the vagina. Did not feel shy, girls. You listen first. Whatever queries you have, you feel we all are girls only here. Okay, don't feel shy. I have gone through that. My colleague has gone through that. All our teachers have gone through that. Now you will be going, and somebody must have started also. So need not feel shy. Don't hesitate. Listen to the lecture properly. Okay. So that is the vagina from where the bleeding occurs. Okay. वहाँ से blood आएगा. Okay. तो अभी जो menstrual cycle है ना, हम hygiene बाद में देखेंगे. सबसे पहले बोलेंगे ये क्या बोल के क्या hygiene, but क्या है menstrual, हमें hygiene किस चीज़ की देखना है ना. तो first of all you all should know the menstrual cycle हर महीने की. तो किसी के 28 days रहेंगे, किसी के 23
फ्लशिंग रहेगा, बहुत गर्मी फील होगी आपको, बहुत गर्मी फील होगी। एंड देन एब्डोमिनल पेन तो मोस्ट ऑफ 90% होता ही है, दैट्स नॉर्मल, दिस आर ऑल योर सिम्पटम्स। दिस इज योर कान बिलो द सच, यस अंडा वीडियो बाद में लगाते हैं। पहले हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, फिर एक शॉर्ट वीडियो बनाते हैं। अभी हमने क्या एक्सप्लेन किया आपको कि पीरियड्स कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं, है ना? तो समथिंग इज गोइंग फ्रॉम योर बॉडी, सो क्या हम गंदे में रहेंगे? समथिंग इज कमिंग आउट योर बॉडी, यू डिड नॉट, यू शुड वॉश ना। आप आपके हाथ में कुछ गंदा लगता है तो आप ऐसे नहीं धुलते हाथ नहीं ना, गो एंड वॉश योर हैंड। तो सेम, तो जो पीरियड्स में ध्यान रखना है, लाइक वो पीरियड्स को हमने देखा है पहले क्या मतलब मेडिकल टर्म में मेंस्ट्रुएशन, सो इन दोस पीरियड्स हाउ यू विल प्रिवेंट योर हाइजीन, menstruation hygiene, menstrual hygiene. So here what you will be doing, you keep the body clean and healthy. You will be keeping your body clean and healthy. In what ways you will be keeping your body clean and healthy? Try girls to take bath 2 times in a day. सुबह जब स्कूल आते हो you will be taking your bath, before going to your bed you will be taking, ये भी आदत लगाओ अभी से ही, you keep on taking 2 times a bath, keep your body clean and neat and tidy, and you will be more confident. It prevents infections and what bad odor. Helps girls feel confident and comfortable. In taking care of menstrual hygiene, I will show you in the next video how you will be keeping the sanitary pads, कैसे रखना है, ठीक है? तो आप उसके लिए क्या करोगे? You will be changing pads every 4 to 6 hours, ठीक है? अभी बहुत कुछ लड़की लोग ना मतलब मैं भी आज से थोड़ी सी हूँ तो अभी बहुत ब्लीडिंग हुई है, ब्लीडिंग नहीं भी हो भी नहीं, तो you should girl change the pads between 4 to 6 hours. नहीं तो पूरा पूरा दिन 10 घंटा वही pads से that is the source of infection. You will be landing into source of infection और वो क्या होता है? Negative. जो from down it will be going to inside. जो कहाँ से आपको bleeding हो रहा था from the uterus. तो आप क्या करोगे? If you not take care of your private part, तो वो infection it will land into uterus and then you will be
मुझे अपने आप से घृणा आ रही है। पता नहीं मुझे कोई बीमारी हो गई है। जाने क्या बह रहा है वहाँ से। मेरा कुछ भी करने को मन नहीं कर रहा। कपड़ों पर भी दाग लग रहे हैं। ऐसा कुछ भी और तू परेशान क्यों हो गई है? ये तो सब लड़कियों के साथ होता है इस उम्र में। सबके साथ होता है? तो क्या तेरे साथ भी? हाँ, 3 महीने पहले मुझे भी ये शुरू हुआ था। तब से अब नहीं होता है। क्या तुझे ये सब अजीब नहीं लगता? क्या तुझे चिंता नहीं होती? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। भूख लगी तो मैं तेरी बात मान लूंगी। अच्छा अच्छा ठीक है। मेरी बात नहीं मानेगी पर दीदी की बात तो मानेगी ना? कौन सी दीदी? वर्ल्ड विजन संस्थान की दीदी। मुझे ऐसा लगा। मुझे ये बस्ती की बड़ी लड़की को तुमने लगाया है इस बारे में। अपनी दीदी के पास चल। वो तो बहुत अच्छी है। सबसे प्यार के साथ बात करती है। तो वो मेरी चिंता दूर कर देगी। हाँ हाँ तू चल तो सही मेरे साथ। मैं अपनी माँ के साथ चलूंगी। हाँ हाँ चाची जी को भी ले आना। शाम को मैं भी मिलूंगी तुम्हें दीदी की तरफ। अरे ये सब हुआ था तो मुझे बता देना। मैं एक बार बताती तेरे को। और मुझसे क्यों नहीं कहा? वो तुमसे कहने में शर्म आ रही है। और अब इस दीदी के पास जाने में शर्म नहीं आ रही है। वो तो सुनिए ने मुझसे कहा कि दीदी सारा दिन पूरी जानकारी देगी। हाँ और जैसे हमको कुछ जानते ही नहीं ना और जानने वाले सुना जब तक ये सब बंद ना हो जाए तब तक तेरी सुविधा नहीं जाएगी। हाँ, क्यों माँ? अरे दीदी इस बात की सावधानी रखी जाती है। अरे क्या हुआ मधु भाभी? नेहा रसोई घर में क्यों नहीं जाएगी? अरे आओ बेटा आओ। बैठो बताओ तो हुआ क्या? अरे क्या कुछ नहीं हो गया। रसोई घर में शुरू हुआ। अब इन बातों की सावधानी तो रखनी ही पड़ेगी ना। नहीं भाभी ये सब गलत है। गलत है? हाँ भाभी। बड़ी जल्दी दीदी द्वारा दी गई जानकारियों ने मेरी सोच और जीवन बदल दिया है। अरे उन्हीं दीदी के पास जाने के लिए तो नेहा भी कह रही थी उनसे। तो फिर मान लो ना इसकी बात। जानकारी देने में कोई हर्ज नहीं है। तो आज शाम को ही नेहा को साथ ले जाकर दीदी से मिलो। तो ठीक है नेहा, हम शाम को जरूर चलेंगे तुम्हारी दीदी के पास। आपने अच्छा किया जो नेहा को लेकर यहाँ वर्ल्ड विजन के सेंटर पर चली है। इसके लिए भी मुझे नेहा ने ही तैयार किया है दीदी। हाँ मुझे नेहा के बारे में सब मैंने बताया है। नेहा जैसी लड़की को इस बारे में सही जानकारी मिलना बहुत जरूरी है। मुझे तो उसने कुछ बताया ही नहीं। तो आपके लिए नेहा को बता दें इस बारे में ताकि ये बीमारी की परेशानी को चिंता भी नहीं हो। तो क्या मुझे पहले बता देना चाहिए था? हाँ लड़की जब किशोरावस्था में आती है तो माँ फर्ज होता है कि वो उसे महावारी के बारे में बताए। उसे मानसिक रूप से इसके लिए तैयार करे ताकि वो इसे सामान्य रूप से स्वीकार करे और किसी उलझन में प्रभाव न पड़े। आपने ठीक कहा दीदी। क्योंकि अब तो आप ही बता दीजिए इसी सच्ची बात। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनो और समझो। कोई भी लड़की जब किशोरावस्था में आती है तो उसके शरीर के कुछ विकास आने लगते हैं। जैसे वजन बढ़ता है, बीमारी होती है, आवाज में बदलाव आता है, शरीर के कुछ हिस्सों में बाल आने लगते हैं और स्त्री यानी व्यस्त का विकास होता है। लेकिन ये सब बदलाव बाहरी होते हैं जो देखे जा सकते हैं। इनके अलावा शरीर में कुछ गंभीर बदलाव भी होते हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। ये अनुभवी बदलाव कौन से होते हैं दीदी? देखो किशोरावस्था में पहुंचने पर लड़की के मस्तिष्क में एक विशेष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड में एक हार्मोन पैदा होने लगता है जो खून के दौरे के साथ अंडाशय यानी ओवरी में पहुंचता है। ये अंडाशय यानी ओवरी गर्भाशय यानी फलोपियन ट्यूब द्वारा प्रच्छेदन यानी यूट्रस और आदि ग्रंथियां यानी वजाइना से जुड़े हुए अंडाशय यानी ओवरी में अनेकों अंडों
जो बहुत ही बारीक है। इसके अलावा तलाशी से एक विशेष तरल चिनाई तक पहुंचता है और उसे मजबूती देता है। हर महीने तलाशी से कुछ घंटे एक सूखे पर चिनाई तक पहुंचती है। आमतौर पर ये महामारी चक्र यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल के मध्य समय में होता है। अगर इनमें से किसी घंटे का पुरुष शुक्राणु यानी स्पर्म से मेल हो जाए तो वो भ्रूण यानी fetus के रूप में बनने लगता है। और अगर ऐसा ना हो तो ये अंडे और बच्चेदानी को मजबूती देने वाला तरल पदार्थ यानी वजाइना के से बाहर जाते हैं और यही महामारी होती है। तो हम जाना 3 घंटों में बदलाव की वजह से महामारी होती है जो 3 से 7 दिन तक रहती है। जब इसकी शुरुआत होती है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा या कम दिनों तक भी हो सकती है। ये तो सब लड़कियों में होता है। हाँ मतलब है, होता तो सब में है, लेकिन इसकी शुरुआत एक ही समय पर नहीं होती। महामारी की शुरुआत 11 वर्ष से लेकर 17 वर्ष की उम्र में भी हो सकती है। लेकिन इसका एक नियम हो जाता है। हाँ बिल्कुल है, जब महामारी पूरी हो जाती है तो इसे मासिक चक्र यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहा जाता है। मासिक चक्र का नियमित रूप से आना इस बात की निशानी है कि शरीर के महत्वपूर्ण सामान्य रूप से काम कर रही है। मासिक चक्र शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक विशेष शारीरिक रसायन यानी केमिकल पैदा करता है जिसे हार्मोन्स कहा जाता है। ये हार्मोन्स अतिरिक्त गर्भ ठहरने की संभावना भी पैदा करते हैं। दीदी, मासिक चक्र को गिना कैसे जाता है? नेहा, मासिक चक्र को पहली महामारी के पहले दिन से अगली महामारी के पहले दिन तक गिना जाता है। आमतौर पर महामारी चक्र 28 दिन का होता है, लेकिन बालिग अवस्था में 21 से 35 दिन और किशोरावस्था में 26 दिन तक भी हो सकता है। तो इसका मतलब है दीदी कि महामारी शुरू होने की तारीख अलग हो सकती है। नेहा, जैसे मैंने कहा कि आमतौर पर एक महामारी समाप्त होने के 28 दिनों के बाद अगली महामारी होती है, लेकिन शुरुआत में ये जल्दी या देर से हो सकती है। इससे घबराना नहीं चाहिए, ये बाद में नियमित हो जाती है। इसके लिए अच्छा होगा कि हर लड़की अपनी महामारी का ध्यान रखे ताकि महामारी के समय और इसके दिनों का ध्यान रखा जा सके। ऐसा करने से यदि मासिक चक्र में कोई असामान्य बदलाव आता है तो हम डॉक्टर से जांच करा सकते हैं। तो हमने जाना कि महामारी हमारे स्वस्थ विकास की निशानी है। ये एक सामान्य बात है और इससे ना तो घबराने की जरूरत है और ना शर्मसार होने की। महामारी आने का ये मतलब भी तो होता है कि लड़कियां मां बन सकती है। हाँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि महामारी शुरू होते ही लड़की की शादी कर दी जाए। किसी भी लड़की की शादी 18 साल से पहले नहीं करनी चाहिए। 18 साल के बाद ही एक लड़की शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार होती है शादी के लिए। समझ गई, मैं तो ऐसा कभी नहीं करूँगी। हाँ दीदी, क्या मुझे लड़कों से दूर बैठना चाहिए? तो क्यों नहीं? कहीं किसी लड़की ने मुझे छू लिया और मैं मां बन गई तो? ये गलत है। ये सही है कि पुरुष और स्त्री के मिलन से ही गर्भ ठहरता है, लेकिन छूने भर से ऐसा नहीं होता। तुम्हारी गलतफहमी मिटाने के लिए मैं तुम्हें सच्ची बात बताती हूँ। देखो, स्त्री का गर्भ तभी ठहरता है जब स्त्री के अंडाशय यानी ओवरी से उत्पन्न करने से पुरुष की शुक्राणु का मिलन होता है। ये मिलन अंडाशय में यानी फलोपियन ट्यूब में होता है और स्त्री पुरुष द्वारा परस्पर सहवास करने से होता है। हमें ये भी जान लेना चाहिए कि एक बार सहवास करने से ही गर्भ ठहर सकता है। क्यों नेहा? अब तो तुम्हारी गलतफहमी दूर हो गई ना? दीदी, आपने हमको महामारी के दौरान सफाई रखना भी बताइए, जैसे हम सबको बताया था। हाँ नेहा, महामारी के दौरान सफाई रखना भी बहुत जरूरी है। नहीं तो कोई संक्रमण यानी इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। इस बारे में तुम्हारी माताजी को भी ध्यान रखना चाहिए। महामारी के दौरान लड़की को रोज गुनगुने पानी से नहाना चाहिए और तुम्हें यानी वजाइना को भी अच्छी तरह से साफ करना चाहिए और अनकपड़े कपड़े भी रोज बदलने चाहिए। लेकिन महामारी के दौरान सफाई रखने का सबसे उत्तम साधन है सैनिटरी नैपकिन्स का इस्तेमाल करना। हर 4 से 6 घंटे बाद नैपकिन या पैड को बदलना चाहिए और रात को सोते समय तो इसे जरूर बदलना चाहिए। अच्छा दीदी, क्या इसके लिए कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं?
आपने सुखाया होना चाहिए। यदि उस कपड़े को दोबारा इस्तेमाल कर रहा है तो भी उसे साबुन में धोकर धूप में सुखा कर रख लेना चाहिए। दीदी, महामारी के दौरान मुझे मुश्किलें महसूस होती है। क्या कह रही हो माँ? कौन सी मुश्किलें? घबराओ नहीं दीदा, ये तो महामारी का भी हिस्सा है। महामारी के दौरान पेट की नीचे से यानी लोअर एब्डोमेन में दर्द, सिर दर्द, लोहे या पकड़ यानी खराबी की शिकायत हो सकती है। कभी-कभी खाने की इच्छा बढ़ जाती है या फिर कब्ज भी महसूस हो सकती है। ये सब लक्षण सामान्य होते हैं, इसलिए इनसे घबराना नहीं चाहिए और इसके लिए दवाओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर दर्द या तकलीफ बढ़ जाए या सही हो जाए तो तुरंत डॉक्टर या स्वास्थ्य कार्यकर्ता से संपर्क करना चाहिए। दीदी, क्या मैं महामारी में कुछ भी खा सकती हूँ? हाँ नेता, तुम घर का पका सब कुछ खा सकती हो और तुम्हें खाना भी चाहिए। मधुमेह, आप भी ध्यान रखें कि इस दौरान लेना संतुलित और पौष्टिक भोजन लें और उसमें हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर शामिल होनी चाहिए, क्योंकि इस दौरान लड़की को युवा तत्व यानी आवश्यक की जरूरत होती है। कुछ सावधान रखिए, जैसे अचानक ना छूना वगैरह वगैरह। लेकिन मधुमेह ये सब अंधविश्वास है, इनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, इसलिए इन्हें नहीं मानना चाहिए। महामारी के दौरान लड़की अचानक आदि को ना छुए, रसोई घर या पूजा के स्थान पर न जाए, इस दौरान वो नए कपड़े ना पहने, चारपाई पर ना सोए या सबके साथ ना खेले। ये सब बातें गलत हैं। इन्हें अपनाने के लिए लड़की को मजबूर नहीं करना चाहिए। इससे लड़की के मन में निंदा, दहशत और अंधविश्वास पैदा होते हैं, जो ना तो उसकी तरक्की से बनने के लिए अच्छी हो और ना ही तरक्की से बनने के लिए। आप तो तुम्हारी चिंता। कितने लोगों को पीरियड्स आ रहे हैं, आते या फिर नहीं, कुछ भी मतलब जिनको आ रहा है वो भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिनको कुछ भी अभी भी क्या बोल रहे हैं कुछ। वैसे भी हो सकता है, हमने थोड़ा आगे का आपको बताया है जो ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में भी आएगा किसी को, लेकिन एडवांस थोड़ा मालूम होना चाहिए, इसलिए ऑलरेडी आपको बता दिया। ठीक है, तो अभी और एक मैं वीडियो दिखाती हूँ, तब तक आपका कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि वैसा बॉडी सिस्टम भगवान ने ऑलरेडी बनाया है। तो बॉयज को पीरियड्स नहीं होते हैं, लड़कियों को होते हैं। क्यों होते हैं? वो नेचुरल प्रोसेस है। ओके, boys have uterus every time boys and you have seen picture में देखा रहेगा boys pregnant हुए हैं so God has given us uterus okay हमें वो क्षमता there are many girls को कैसे strong बनाया that's why girls only girls only menstruate boys को periods नहीं आते हैं okay that is the other puberty वाला ठीक है वो आपको बाद में जब थोड़े बड़े होंगे तो एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि नेक्स्ट एक टाइम साइंस You stand up. बाहर हो और कभी आपको जब भी फर्स्ट टाइम पीरियड्स आएंगे तो क्लियरली पूछो खड़े होकर। पेट में दर्द होता है क्योंकि अपना जो यूट्रस है उसमें चेंजेस होते हैं, फिर हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं। तो जब भी यूट्रस का कुछ अलग चेंजेस स्टार्ट होता है, अभी मैं आपको नॉर्मल इसमें बताऊंगी, अगर मैं पूरा एनाटॉमिकली बताऊंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो आपको जो समझेगा वो लगेगा। तो जब भी हमें यूट्रस में कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे बताया कि शेडिंग होता है, ब्लड आएगा नीचे, तो उसकी वजह से वो चेंजेस की वजह से पेन होता है। और हमें कुछ भी है तो टीचर को, अगर स्कूल में हो तो टीचर को बता सकते हो, घर में हो तो बहन को, भाई को, पापा को, या फिर अपने फ्रेंड्स को, स्कूल में हो तो फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं। पर फायदा क्रैम्प्स है इसलिए हमें ज़्यादा पानी पीना चाहिए। ठीक है, और क्रैम्प्स पानी पीने से कम होता है, नारियल पानी पीने से कम होता है। क्रैम्प्स आते हैं, पेन होता है, वो क्रैम्प्स मतलब ऐसे होगा
भी हो जाएगा, लेकिन नारियल पानी पीना है, मम्मी ला के देती, आप जितना मांगोगे मम्मी ला के देती। और डिहाइड्रेशन की वजह से भी क्रैम्प्स बढ़ते हैं, तो ज़्यादा पानी पीना। हाँ, हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोन चेंज होते रहते हैं अपनी बॉडी के, इसलिए मूड स्विंग्स होते हैं। बट ये सब ज़्यादा टेंशन लेना ही नहीं है, वो नॉर्मल प्रोसेस है, वेरी 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 नॉर्मल प्रोसेस। ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ है, पीरियड स्टार्ट हुआ है, तो कुछ अपना कुछ भी नहीं है। जैसे